پیپلز پارٹی کا 30 لاکھ گھر، دگنی تنخواہ، 300 یونٹ فری بجلی کا وعدہ۔ آصفہ بھٹو نے کراچی کا سیاسی محاذ سنبھال لیا، پارٹی منشور گھر گھر پہنچا دیا۔ شہید بی بی کی بیٹی کی قیادت میں شہریات کے مختلف علاقوں میں ریلی، جیالوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا لیاری پیپلز پارٹی کا تھا، ہے اور رہے گا۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ عام انتخابات 2024 کی الیکشن مہم، پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی گہما گہمی بڑھا دی۔ آصفہ بھٹو کا ٹاور، آگرہ تاج، میمن سوسائٹی، بہار کالونی، چیل چوک، گھاس منڈی سمیت لیاری کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال، پھول نچھاور، پارٹی ترانوں پر جیالوں کا رقص، فضا میں وزیر اعظم بلاول کے نعرے بلند ہو گئے۔ اس موقع پر آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میں بیٹی ہوں بے نظیر شہید کی، میں اور بلاول بھٹو عوام کی آواز ہیں، ہم لیاری کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں آصفہ بھٹو زرداری آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں بیٹی ہوں بے نظیر کی، اور بے نظیر غریب کی آواز تھی، مزدور کی آواز تھی، طلبہ کی آواز تھی، عورتوں کی آواز تھی، اور لیاری کی آواز تھی۔ آصفہ بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس عوام دوست منشور موجود ہے، ہم نے NIVCD کا عوام کو تحفہ دیا، انہوں نے کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ہمارے پاس ایک عوام دوست منشور ہے، ایک غریب دوست منشور ہے جو زندگی بہتر بنائے گی۔ ہم نے NICVD چیسٹ پین یونٹ بنایا، ہم نے ٹراما سینٹر بنایا جہاں بالکل مفت علاج ہوتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 30 لاکھ گھر بنیں گے، کچی آبادی اس کو ریگولرائز کریں گے اور مالکانہ حقوق بھی دیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دیں گے۔ ریلی کے موقع پر PP کراچی کے صدر سعید غنی، لیاری سے PP کے امیدوار نبیل گبول، عثمان ہنگورو اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کیمرہ ٹیم شکیل خان اور ساتھی رپورٹر طاہر ملک کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کہ مخالف جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں، سنی تحریک اور TLP کا مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ ترجمان سنی تحریک فہیم شیخ نے اتحاد کو نظریاتی قرار دے دیا۔ TLP کراچی کے امیر قاسم فخری کہتے ہیں کراچی لبیک کا ہے، 4 فروری کو باغ جناح میں عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ کاوش میمن کی رپورٹ ہے۔ انتخابات کا دنگل، TLP اور سنی تحریک کا مل کر مخالف جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان۔ ترجمان سنی تحریک فہیم شیخ کا کہنا ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے اہل سنت کی تمام اکائیوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ تحریک لبیک کراچی کے امیر قاسم فخری بولے 4 فروری کو باغ جناح میں عظیم الشان جلسہ ہوگا جس میں سنی تحریک کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس دوران جو الیکشن کمپین کا سلسلہ جاری ہے، 4 فروری کو باغ جناح میں جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، باغ جناح کے جلسے میں بھرپور شرکت کرنے کی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ ہم باغ جناح میں جو تحریک لبیک پاکستان کا جلسہ ہے 4 فروری کو اس میں شرکت کریں گے۔ سنی تحریک نے لبیک کے جلسے کی حمایت کرتے ہوئے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں عالمی معیار کی پہلی میراتھن، 1000 افراد کی شرکت، 42 کلومیٹر کیٹیگری ریس گجرانوالہ کے عامر سہیل نے اپنے نام کر لی۔ 21.1 کلومیٹر کی دوڑ میں پہلی پوزیشن محمد حفیظ کے نام رہی۔ فل میراتھن ریس میں خواتین کیٹیگری میں ماہنور پہلے نمبر پر رہیں، جبکہ 5 کلومیٹر ریس ملیحہ، نصف کلومیٹر ممتاز نعمت نے جیت لی۔ فرحان خان کی رپورٹ۔ کراچی دوڑے گا شہر قائد میں بین الاقوامی طرز کی میراتھن ریس کی 4 کیٹیگریز میں 1000 سے زائد افراد کی شرکت۔ ساحل کے قریب سڑک پر ہر عمر اور ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد دوڑتے دکھائی دیے۔ صبح سویرے ہونے والی پہلی میراتھن ریس کا فاصلہ 42.2 کلومیٹر رکھا گیا، جبکہ دیگر راؤنڈز میں ہاف میراتھن 21.1 کلومیٹر، 4 رکنی مقابلے اور 5 کلومیٹر کی دوڑ کو شامل کیا گیا۔ میراتھن ریس CVO کلفٹن پر نشان پاکستان سے شروع
होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। अपनी नवीद की मुनफरिद रेस में निगरां वजीर खेल भी शरीक हुए। जुनैद अली शाह ने बैनुल अक़वामी तर्ज की पहली मैराथन रेस के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। आज पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल एक्रेडिटेड मैराथन पाकिस्तान में होने जा रही है कराची शहर में। आई होप के सब इंजॉय भी करेंगे इसको, लेकिन असली जो बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान की पहली एक्रेडिटेड मैराथन है, जिसको बर्लिन मैराथन, न्यूयॉर्क मैराथन, लंदन मैराथन के स्टैंडर्ड पे ये अरेंज कराई गई है। मैराथन में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि आज के मसरूफ दौर में ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बहुत अच्छी एनर्जी है, एवरीवन लुक्स वेरी एक्साइटेड और हर कोई पार्टिसिपेट करना है, बिगिनर्स से लेके वेरी एक्सपीरियंस्ड रनर्स, सो इट्स अ गुड इवेंट। मैंने सब लड़कों में से मैं ही बच्चा था जो कि ये मेडल लेकर आया हूँ। मैंने ये लगाई शौक से और कराची वालों ने अच्छे इंतजाम किए थे, तो शुक्रिया इनका कराची वालों का जिन्होंने आप मैराथन कराई पाकिस्तान में। इख्तितामी तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर शहजाद और अमेरिकन कौंसल जनरल भी शरीक हुए। 42.2 किलोमीटर कैटेगरी में गुजरावाला के सुहेल आमिर ने पहला इनाम हासिल किया। 21.1 किलोमीटर में फैसलाबाद के मोहम्मद हाफिज और 5 किलोमीटर रेस में पंजाब की मलिहा ने पहला इनाम पाया। मैराथन रेस में खवातीन कैटेगरी में कम उम्र महानून ने पहली पोजीशन हासिल की। जीतने वालों को 5 लाख रुपए तक के इनामात और मेडल्स दिए गए। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। एडवोकेट जनरल सिंध एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का संगे बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हाउसिंग सोसाइटी का संगे बुनियाद रखा। कहा इस सोसाइटी में कानूनी या कोई और मसला नहीं, हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार हूँ। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजिस के लिए भी हाउसिंग सोसाइटी का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने खिताब किया। बताया कि इस सोसाइटी में कोई भी मसला नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर वकला की मुआवनत करेंगे। जिनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिए, तो आई डोंट थिंक कि आपको ग्रांट देने में उनको कोई हर्ज होना चाहिए। आप इस मैटर को टेकअप करें और जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। जजिस की फैमिली मेंबरान ने भी नई सोसाइटी से उम्मीदें लगा ली। बोले सोसाइटी के कयाम से मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। जी आज हम लोग माशाल्लाह एडवोकेट जनरल सिंध सोसाइटी में आए हुए हैं और यहाँ तमाम मलाटीज़ मेंबर्स सब तशरीफ़ लाए और सोसाइटी के डेवलपमेंट का काम जो यहाँ पे देखा बहुत तसल्ली बख्श है। बहुत खुशी हुई ये काम देख के और इंशाल्लाह आगे ऐसी प्रोग्रेस रहेगी तो सोसाइटी फलेगी फूलेगी इंशाल्लाह। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है और सबका मैं है ना बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सब शुरू किया है। और जो अभी मैंने तकरीरें भी सुनी, सबके तकरीरें पसंद आई, यानी कि ये देखें बहुत फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है। हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर काजी खालिद अली ने कहा कि कोशिश होगी कि हुकूमत से ग्रांट मंजूर करवाकर अरकान को मजीद सहूलियात फराहम करवाएं। वज़ीर कानून साहब ने, उमर सुमरो साहब ने 950 मिलियन गवर्नमेंट से मंजूर कराने का वादा किया है, तो अगर गवर्नमेंट ये आनत करेगी तो ये मेम्बरान पर एडिशनल बर्डन नहीं आएगा। होक्सबे पर एडवोकेट जनरल सोसाइटी के बुनियाद रखने की तकरीब में वकला और उनके अहले खाना की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मीर केरियो, सिटी 21। प्याज खानों की तैयारी का लाजमी जुज़। होलसेल में 160 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली प्याज मुनाफाखोर 240 रुपए किलो में बेचने लगे हैं। प्याज के बरामद करंदगान ने कीमतों में इजाफे की वजह मुनाफाखोरी को करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। प्याज मुनाफाखोरों के निशाने पर आ गई। शहर की सब्जी मंडी में दरामदी प्याज की होलसेल कीमत 125 रुपए किलो और मुकामी प्याज की कीमत 160 रुपए किलो है, लेकिन यही प्याज इलाकाई बाजारों में मुनाफाखोर 80 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। सबसे पहले है कि प्याज जो है 125 रुपए किलो से लेके 130 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 160 रुपए लोकल में यहाँ पर हम लोग जो मार्केट में अब जाते हैं, बाहर मार्केट में यहाँ तक बिक जाते हैं। बाकी जो एक्सपोर्ट का जो मसला है जो यहाँ से चल रहे, वो भी तकरीबन रेट अभी काफ़ी कम हो गए, वो भी तकरीबन 6.5 से 7 ऐसा आए हैं पोजीशन में, तो काफ़ी कम हो गया रेट। तो इस हवाले से तो पहले जो पोजीशन चल रहा था कि 200 रुपये मार्केट में प्याज मिलता था या 250 रुपये मार्केट से लोग खरीद के जाते थे, वही प्याज अभी मिल रहे हैं 150 से 160 रुपये किलो। जो अच्छे क्वालिटी है, जो दरमियानी क्वालिटी है वो मिल रहे हैं 140
से लेके तकरीबन 130-125 रुपए मिलता है। प्याज के ताजिरों का कहना है कि ईरान और अफगानिस्तान से प्याज दरामद की गई है। प्याज की कीमत में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट नहीं बल्कि नाजायज मुनाफाखोरी है। अभी जो प्याज महंगा बेच रहे हैं ये लोकल मार्केट में जितने भी मुनाफाखोर हैं उनकी वजह से महंगा हो रहा है। एक्सपोर्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो प्याज की कॉस्टिंग पड़ रही है $600-650, हम पाकिस्तान में डॉलर मंगा रहे हैं $1210 के हिसाब से। एक्सपोर्टर तो गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहा है। में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, एक्सपोर्ट हो रहे हैं और बाकी इसके अलावा जो है ना अपना भी वो ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा है प्याज का पाकिस्तान का। ताजिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि प्याज को अवाम की पहुंच से दूर करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कि नेस्ले पाकिस्तान के पब्लिक अफेयर्स और कम्युनिकेशन ऑफिसर राहत हुसैन और नवीरा की दावत वलीमा, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी शख्सियात भी शरीक हुई और जोड़े को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। नेस्ले पाकिस्तान के पब्लिक अफेयर्स और कम्युनिकेशन ऑफिसर राहत हुसैन शादी के बंधन में बंध गए। राहत हुसैन और नवीरा के वलीमे की तकरीब ओशन मॉल के बॉल रूम में मुनाकिद हुई। दावत वलीमा में रिश्तेदारों, दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और जोड़े को मुबारकबाद दी और जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। गुलिस्तान जौहर में कायम वाकई अस्पताल में अमजद साबरी के बेटे तलहा साबरी ने मोरंगा ट्री लगाया। गुलिस्तान जौहर में कायम वाकई अस्पताल में मोरंगा ट्री के बीज लगाने की तकरीब मुनाकिद की गई। इस दौरान तलहा साबरी ने वीएन फाउंडेशन हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अकरम लोहदी के साथ मिलकर नाइट ब्लाइंडनेस के मरीजों के लिए मोरंगा ट्री लगाया। ZKB सिंध प्रीमियर लीग में मीरपुर खास टाइगर्स ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। लाड़काना चैलेंजर्स को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मजीद इस रिपोर्ट में। नेशनल स्टेडियम में मीरपुर खास टाइगर्स ने लाड़काना चैलेंजर्स को 7 विकेटों से हराया। मीरपुर खास ने 100 रन का हदफ बआसानी 11.4 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। मीरपुर खास टाइगर्स की जानिब से मोहम्मद सुहेल खान 46 और आसिफ अली 27 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद इलियास और उमैद आसिफ ने एक विकेट हासिल की। लाड़काना चैलेंजर्स पहले खेलते हुए 19.3 ओवर्स में सिर्फ 99 रन पर ढेर हो गई। जिशान मलिक 32, उमैद आसिफ 14 और असद शफीक 13 रन बना सके। समीन गुल और शहाब खान ने 3-3 विकेटें हासिल की। मीरपुर खास टाइगर्स के शहाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। द नेक्स्ट स्कूल के तहत सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद हुआ। इवेंट में नर्सरी से लेकर प्राइमरी क्लासेस की तमाम शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अमाद की रिपोर्ट में। दी नेक्स्ट स्कूल जौहर कैंपस का स्पोर्ट्स गाला सजा। इवेंट में नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक के तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। दी नेक्स्ट स्कूल की डायरेक्टर मरियम जुबैर का कहना था कि तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों से तुलबा की सलाहियतों में इजाफा होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे अलग अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है और अलग अलग रेसेस में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक हमारा हर साल का एक बहुत ही अच्छा इवेंट होता है जिसमें हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तुलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहरीकात में सालाना इंटर स्कूल अंडर रिगाटा में लड़के लड़कियों ने खूब जोर बाजू लगाया। मजीद जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। कराची बोट क्लब में 16वां सालाना इंटर स्कूल रिगाटा का आगाज हो गया। बड़ी तादाद में लड़कों लड़कियों ने कमाल दिखाया। 20 से जायद नाबीना एथलीट्स भी शरीक हुए। इवेंट में अंडर 15, अंडर 18, अंडर 21 और अंडर 25 के मुकाबले हुए। मीराल जफर ने अंडर 21 कैटेगरी में 2 रिकॉर्ड बनाए। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन बस पुल करके जीत गए। बहुत लीड नहीं था, बहुत लीड मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए क्योंकि ये एक स्टेप है इंक्लूसिविटी की तरफ, जहाँ पर हम ज़िंदगी के तमाम जो ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो तमाम लोग एक जगह गैदर हो सके, आगे बढ़ सके। चेयरमैन रिगाटा आरिफ इकराम कहते हैं रनिंग में टैलेंट बहुत है। टॉप परफॉर्मेंस को बैरून मुल्क इवेंट्स में भेजा जाएगा। इनमें से जो बहुत सा टैलेंट निकल आ रहा है इसमें नज़र आ रहा है। 4 रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुई हैं आज की तारीख में। एंड इससे जो हमारे बच्चे निकलेंगे, जो टैलेंट नज़र आ रहा है, इनमें से इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी जिसमें हम इन बच्चों को लेकर जाएंगे वियना इंटरनेशनल कंपटीशन में और लिथुआनिया में भी अंडर 19 ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें भी हम लेकर जाएंगे इनको कम्पीट करने के लिए। इवेंट्स में 27 स्कूल और यूनिवर्सिटी के 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आखिर में कामयाब एथलीट्स को मेडल्स पेश किए गए। समंदर में रोनिंग इवेंट 2 से 4 फरवरी को होगा। जावेद इकबाल, सिटी 21।
खाना बनाना महारत नहीं, असल महारत इसको जायका देना है। कराची के बासियों को चटपटे मज़ेदार खाना बनाने की तरबियत देने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर की जानिब से मास्टर कुकिंग क्लास का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे आमा खान की रिपोर्ट। शहरी कायद के शेफ्स के दरमियान मुकाबले का इनेकाद। कराची विमेन एंटरप्रेन्योर बाय शमा की जानिब से लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में मास्टर कुकिंग क्लास मुनक्किद की गई। प्रोग्राम का मकसद शेफ कोर्स से मुंसलिक अफराद की सलाहियतों में इजाफा करना था। प्रोग्राम में मशहूर और मारूफ शेफ्स ने शिरकत की और शुरा को शेफ कोर्स से मुतालिक तरबियत फराहम की। शेफ्स का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, नौजवानों का टैलेंट सामने आता है। लाइव कुकिंग कंपटीशन था और इसके अलावा इसके अंदर केक का कंपटीशन था, डिज़र्ट का कंपटीशन था। अभी जो है शेफ़ गुलजार की और शेफ़ असद की क्लास होने जा रही है थोड़ी देर में। मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, सब ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। जो थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं वो हमने उन्हें काउंट की हैं, उनकी गलतियों को हमने सुधारा है। कि आप लोग आएँ, अपना टैलेंट दिखाया करें और जो देखें जो उसमें कमियां होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। और फॉर दोस्त जो कि ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास आएँ। कुकिंग क्लास में खाना पकाने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। रोशनियों के रंग क्लासिकल मौसीकी के संग कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी एलुमनाई फेस्टिवल का दूसरा रोज़। मज़ीद जानते हैं राहील बेग की रिपोर्ट में। रंग, आर्ट, मौसीकी और रक्स एलुमनाई फेस्टिवल का दूसरा रोज शफकत अमानत की आवाज़ ने 4 चांद लगा दिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम पहले एलुमनाई फेस्टिवल का इनेकाद इफ्तिताह अनवर मकसूद और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। फेस्टिवल का आगाज आर्ट्स एग्जीबिशन से किया गया। डांस परफॉर्मेंस भी पेश की गई जिसमें रक्स के तालिब इल्मों ने अपने फन के जौहर दिखाए। प्रूफ क्लासिकल गायक उस्ताद शफकत अमानत अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। एलुमनाई फेस्टिवल में फन और सकाफत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत करके फेस्टिवल को यादगार बना दिया। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ राहील बेग, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।